प्यार भरा दिल टूट गया। फूल संग मुस्काए कलियां मैं कैसे मुस्काऊं, फूल संग मुस्काए कलियां मैं कैसे मुस्काऊं। बादल देख के भर आई अखियां, बादल देख के भर आई अखियां, छम छम नीर बहाऊं मैं, छम छम नीर बहाऊं। छूट गया बालम, छूट गया बालम, हाय साथ हमारा टूट गया बालम, टूट गया बालम, मेरा प्यार भरा दिल टूट गया। दिल की लगी को क्या कोई जाने, मैं जानूं दिल जाने। दिल की लगी को क्या कोई जाने, मैं जानूं दिल जाने। पलकों की छाया में नाचे, पलकों की छाया में नाचे, दर्द भरे अफसाने, हाय दर्द भरे अफसाने। छोड़ गए बालम हो, छोड़ गए बालम, मुझे हाय अकेला छोड़ गए, छोड़ गए बिरहा की आंधी, ऐसी चली बिरहा की आंधी। तड़पत हूँ दिन रात, हाय मैं तड़पत हूँ दिन रात। छूट गया बालम, छूट गया बालम, हाय साथ हमारा छोड़ गए बालम, छोड़ गए बालम, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। अब कहाँ वो कैफ की रातें, वो दिलचस्पी के दिन, जिंदगी एक मुस्तकिल आजार है तेरे बगैर।
اٹھتا ہے لو اب چلے آؤ کہ دم گھٹتا ہے سلگتے سینے سے دھواں سا اٹھتا ہے لو اب چلے آؤ کہ دم گھٹتا ہے جلا گئے تن کو بہاروں کے سائے میں کیا کروں ہے کہ تم یاد آئے چاند پھر نکلا مگر تم نہ آئے جلا پھر میرا دل کروں کیا میں آئے چاند پھر نکلا. بھولے بسرے گیت پروگرام کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہے یا آپ اپنی پسند کا کوئی نغمہ سننا چاہتے ہیں تو اپنا موبائل فون اٹھائیے اور اس پر ٹائپ کیجئے BBB اور اپنے سجھاؤ اور پسندیدہ نغمے کے ساتھ ہمیں بھیج دیجئے 56000606 پر. اگر آپ ہمیں لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے. امید کرتے ہیں نغمہ اور شعر سے سجا آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. بھولے بسرے گیت پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. فرقے وارانہ فسادات ملکی ہمہ جہت ترقی کی راہ میں اہم رکاوٹ، قومی اقلیتی کمیشن کے سالانہ اجلاس سے وزیر اعظم کا خطاب. مرکز کی پالیسیوں پر ریاستی نمائندوں کا ملا جلا رد عمل، کچھ نمائندوں نے مرکز پر کی نکتہ چینی. اور مظفر نگر فساد پناہ گزین کیمپوں میں پھر 2 کی ٹھنڈ سے اموات، شاملی کیمپ سے نکالے گئے پناہ گزینوں کے آدھا درجن بچے بیمار. اور خاص بات کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ. وزیر اعظم ہند ڈاکٹر منموہن سنگھ نے قومی اقلیتی کمیشن کی جانب سے منعقد سالانہ اجلاس افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کے نفاذ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتیں اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہیں، تاہم مرکزی سرکار حتی المقدور کوشش کرتی ہے کہ اس کا نفاذ عمل میں آئے. In most parts of the countries, the relationship between majority and minority communities is harmonious, although there have been instances where this relationship has been put to severe test, especially of late. These aberrations tarnish the image of our country and our society. They cause pain and suffering
to the affected people. They also disrupt the ability of large sections of our society to contribute to the rapid economic progress of our country. The central government has also established a number of other institutions to ensure that minorities should not only be provided adequate safeguards but also given equal access to development opportunities. The National Minorities Development and Finance Corporation provides concessional finance for self-employment activities to members of minority community. The National Commission for Minority Educational Institutions has been set up for protecting the rights of minorities to establish and administer educational institutions of their child. The Maulana Azad Education Foundation formulates and implements educational schemes and plans for the benefit of the educationally backward minorities. The Central Waqf Council advises the government on matters pertaining to the working of state Waqf boards and proper administration of Waqf property in the country. The National Commission for Backward Classes تام اقلیتی امور کے وزیر کے رحمان خان نے کہا کہ سچر کمیٹی رپورٹ کے تقریباً نکات پر عمل کیا جا چکا ہے، تاہم اب بھی اس کا نفاذ زمینی سطح پر نہیں ہو سکا، اس کے لیے سماجی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے۔ ہر پروگرام میں ڈائریکشن گئے ہیں، اب اس کو حاصل کرنا، اس کو پہنچانا لوگوں تک اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو بھی پروگرام ہمارے 15 پوائنٹ پروگرام ہیں وہ اسٹیٹ کے ذریعے سے ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ مچ ڈیپینڈ اور سکسیس آف آور پروگرام مچ ڈیپینڈ آن دی ڈیلیوری بائی دی اسٹیٹ گورنمنٹس۔ اب اس میں لوگوں کو بھی چوکنا ہونا چاہیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے 15 پوائنٹ پروگرام گراس روٹ تک پہنچنا چاہیے۔ جن لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے مائنارٹیز کو، ان کو ایکٹیو ہو کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر سال الگ الگ موضوعات پر منعقد ہونے والے اس جلسے کا مقصد ریاستی اقلیتی کمیشنوں کے درمیان باہمی روابط اور موضوعات کے عمل اور اثرات کا تجزیہ کرنا ہے۔ مختلف ریاستوں کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین نے مرکزی حکومت کو صلاح و مشورہ دینے سمیت MSDP و دیگر اسکیموں کا سیدھے نفاذ کرنے کی سفارش کی۔ ETV نیوز، نئی دہلی۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین وجاہت حبیب اللہ نے اقلیتی کمیشن کے سالانہ اجلاس کو UPA کی کامیاب پہل سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے سابق میں ہوئے اجلاسوں پر بھی تبصرہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سالانہ اجلاس ملک گیر سطح پر مختلف ریاستوں کی اقلیتوں کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے میں کافی معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اس وشے 15 نکاتی پروگرام پہ رکھا ہے۔ اس وشے کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 نکاتی پروگرام اب 9 سال سے چل رہے ہیں، اس کس حد تک یہ کامیاب ہوا ہے، کس حد تک اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اقلیتی کمیشن ہیں ہر ایک ریاست کے، ان کو بھی احساس ہو کہ ایک دوسری جگہوں پہ کیسے جو چنوتیاں ہیں اس کا سامنا کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے کامیابی پائی جا رہی ہے، کس کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو کون سا طریقہ ہے فائدہ پہنچانے کا۔ اور 9 سال کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ UPA سرکار کے ابھی 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ UPA سرکار کا ہی یہ 15 نکاتی پروگرام بنایا گیا ہے، اور جب سے UPA سرکار آئی ہے تب سے یہ اینوئل کانفرنس ہوتا رہا ہے۔ ادھر مختلف ریاستوں سے اقلیتی کمیشن کے اجلاس میں پہنچے ریاستی نمائندوں نے وزیر اعظم کی تقریر پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ آندھرا پردیش اقلیتی کمیشن کے چیئرمین عابد رسول خان کا کہنا ہے کہ اس سے ملک بھر کی اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ بہار اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مرکز اپنی پالیسیاں ریاستوں پر تھوپ رہا ہے اور ریاستوں کی ضروریات کو ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کہ صاحب مائنورٹی جو بہل چھیتر ہے وہاں یہ کاریکرم چلایا جائے۔ MSDP پروگرام میں نیڈ بیس پروگرام ہونا چاہیے۔ آپ کو پینٹ کی ضرورت ہے، آپ کو ایک کوٹ دے رہے ہیں، تو یہ ان کا غلط یہی طے کرتے ہیں کیا چلے گا آپ کے۔ ہماری ضرورت ہم جانتے ہیں میرا کیا چاہیے۔ جو ٹھنڈک شری نگر میں پڑتی ہے وہ بنگال میں کلکتہ میں تھوڑی پڑتی ہے نا۔ اس وقت پہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو 17 اسٹیٹ کے مائنورٹی کمیشن چیئرمین ہیں
उनको एक जगह पे इकट्ठा करके अगर जब हुकूमत अपने पॉलिसीज उनको बताती है और उनके ख्यालात जब सुनती है और उसको आगे के पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट करती है, तो इससे एक मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और दूसरे भी माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम बनने के इम्कानात है, जिससे आने वाले दिनों में हमको उम्मीद है कि फायदा जरूर पहुंचेगा। जो बात हमारे नए चेयरमैन साहब आबिद रसूल खान साहब ने कही, आपके सामने रखी कि जितनी स्कीमें हैं इनमें अगर जब तक कि हम टारगेट्स नहीं फिक्स करेंगे और उनके साथ हम कोई डिसइंसेंटिव्स जैसे उनके इंक्रीमेंट्स रोक दें, अगर टारगेट की जब पूरा नहीं करेंगे तो उनकी इंक्रीमेंट रोके, उनका प्रमोशन रोके, उनकी पोस्टिंग्स पर अफेक्ट हो और उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ये बात नहीं आए, तब तक चीजें सुधर नहीं सकती हैं। और आज भी ये आलम है कि जो हमारा स्टेट का बजट है, कहीं 12% बोलते हैं, कभी 15% बोलते हैं हैदराबाद में, लेकिन 1% से कम हमारी बजट की एलोकेशन है। उधर कौमी अक़लियती कमीशन के सालाना इजलास में शरीक राजस्थान के नुमाइंदे और जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर ने इस इजलास को ही बेसुध बताया। उनका कहना है कि इजलास में जिस तरह का मंजरनामा पेश किया जा रहा है, हकीकत से उसका दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, क्योंकि जमीनी सतह पर अक़लियतों की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। सलीम इंजीनियर ने अक़लियतों की सलामती से मुताल्लिक़ हिसास मौजू को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया है। तो ये हुकूमत भी और हमारे तमाम नुमाइंदे हुकूमत के हमेशा नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं समझ रहे हैं। वो मसला है मुसलमानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और उनके साथ जुल्म और ज्यादती का मसला, उसको हुकूमत एड्रेस करना ही नहीं चाहती। यहाँ भी जितने स्पीकर आए, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोग, उन्होंने इस मसले को सिर्फ किनारे से गुजर गए, जबकि हमारी निगाह में असल मसला ये है कि डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इस कम्युनिटी को ये एहसास न हो कि वो बिल्कुल ही महफूज है और उसके घर महफूज हैं, उसके कारोबार महफूज हैं। खबरें और भी हैं, खास बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, मैं जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे झुकनी सी। लोहरी के मौके पर देखिए ETV उर्दू की खुसूसी पेशकश, लोहरी स्पेशल विद आरिफ लोहा, बरोज मंगल शाम 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं।
यूपी के मुजफ्फरनगर में सर्द लहर की जद में आकर मजीद 2 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों में एक खातून भी शामिल है, जबकि शामली रिलीफ कैंप में 6 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ये कैंप परसोली गांव में वाक़ई एक फैक्ट्री के अहाते में है। वाज़ेह रहे कि यूपी हुकूमत की जानिब से कैंपों पर बुलडोजर चलने के बाद सैकड़ों फसाद मुतासरा पनाहगुज़ीन फिर से इस ठंड में बेघर हो गए हैं और कुछ सड़कों के किनारे, कुछ किसी गांव के बाहर खेमा लगाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और कुछ लोगों को मकामी बाशिंदों ने पनाह भी दे रखी है। ऐसे ही एक कैंप में ये अमवात हुई हैं। वाज़ेह है कि यूपी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुजफ्फरनगर फसाद का अब कोई कैंप ही मौजूद नहीं है। उधर मुजफ्फरनगर फसाद और उसके बाद यूपी हुकूमत के रवैये से मुल्क भर के मुसलमान बेहद नाराज हैं। दिल्ली में इस सिलसिले में एक मुबाहिसा भी हुआ। इस मुबाहिसे में मुकर्रीन ने समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव पर सख्त तनकीद की और मुलायम सिंह को धोखेबाज लीडर बताया। मुकर्रीन ने मुलायम सिंह को आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाने की बात भी जोर शोर से कही है। सबसे पहले तो जो रास्ता पहला काम जो होना चाहिए, सभी लोगों को मिलकर, सभी समझदार जो भी हमारे देश में लोग हैं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सब लोग समझदार लोगों को मिलकर नंबर 1 उस आग को बुझाने का काम करना चाहिए। उन गरीबों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो यकीन टूटा है, उसकी भरपाई करने के लिए जिस गाँव में वो रहने वाले थे उनको दोबारा उनको वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ, सिक्योरिटी के साथ उनको उसी गांव में लेकर जाना चाहिए और उनका पूरा कंपनसेशन का ये जो प्रेजेंट समाजवादी सरकार है वो उसका इंतजाम करे। यही रास्ता है फिलहाल। देखिए, जहाँ तक मुजफ्फरनगर दंगे का सवाल है, ये एक सोची समझी साजिश है। मुलायम सिंह बीजेपी से मिलकर के ये सब काम करवा रहे हैं और उसका नतीजा आपने देख लिया कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद इन लोगों के जो बयानात आ रहे हैं, ये बड़े मतलब एहसास होता है कि यार इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग इतनी घटिया सोच रखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने मालेगांव में एक जलसे से खिताब के दौरान मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसके लिए बरसर इक़्तिदार पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना ने मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ सब बस्ता होने की तलकीन भी की। जलसे का इनेकाद मालेगांव की खानकाह रहमानिया की जानिब से किया गया था। मौलाना वली रहमानी ने बरसर इक़्तिदार पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों को बेवकत करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों को अपना दस्ते निगर बनाकर रखा जा सके और उनसे सियासी मफाद हासिल किया जा सके। मौलाना ने मुसलमानों को मुत्तहिद होकर नाइंसाफियों के खिलाफ उठ खड़े होने की तलकीन की। पूरी मिल्लत को बेहैसियत करने की तरकीब, पूरी मिल्लत को दहशत ज़दा करने की तरकीब, और ये भी सदमे की बात है, ये भी सदमे की बात है कि दहशत ज़दा कोई और कर रहा है और दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है। वली रहमानी ने मुसलमानों की भी इस बात के लिए तनकीद की कि वो अपने बच्चों को थोड़े पैसों की लालच में कम उम्र में कमाने के लिए लगा देते हैं, जिससे न सिर्फ बच्चे का मुस्तकबिल खराब होता है बल्कि कौम और मुल्क को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये जो हमारे हैं, हमारे बच्चे थोड़ी सी तालीम हासिल करके और कामों में लग जाते हैं। हम और आप नहीं जानते कि कैसे कैसे जरो जवाहर को, कैसे कैसे चमकते हीरो को हम मशीनों में लगा दिया करते हैं। अगर उन्हें हम चमकाएं, उन्हें हम आगे बढ़ाएं और उन्हें हिंदुस्तान की सतह पर चमका कर इस मुल्क के ताज में लगा दें तो यकीन कीजिए ताज की कीमत भी बढ़ जाएगी और मुल्क का वजन भी बढ़ जाएगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली अक़लीती कमीशन के ताउन से मुख्तलिफ मुकामात पर कंप्यूटर सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। जामिया नगर में 2009 से इस सेंटर की निगरानी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज कर रहा है। इब्तिदा में यहाँ से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कराया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 वर्षों से डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोर्स भी जारी किया गया है। अब तक इस सेंटर से 2000 तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। ये फ्री कंप्यूटर सेंटर है। इसमें कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से ये पूरे एरिया में, माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया जितने भी हैं उस एरिया में ये कंप्यूटर ट्रेनिंग चलाते हैं। और इसका फायदा यह है कि अब कंप्यूटर की ट्रेनिंग पूरी सीख लेते हैं। 6 महीने का कोर्स है। इसके साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से भी उस पर लिखा जाता है और इसका फायदा बच्चों को होगा। 2009 से हमारा ये
कोर्स चल रहा है। पहले हमें डीएमसी ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स दिया था, डीसीए के नाम से हम लोग करा रहे थे। वो हमारे पास 9 मंथ का था। अभी ये 2 इयर्स से गवर्नमेंट ने घटा करके हमें 6 मंथ का कोर्स दे दिया, और वो भी डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का दे दिया हमारे पास, जो काफी टफ है, जिसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को कराने में हमें एटलीस्ट 2.5 मंथ चाहिए, लेकिन इसको 6 मंथ के अंदर ही सिर्फ मुझे सारे को 11 सॉफ्टवेयर हमें मिला जिन्हें कवर करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये तीसरा बैच निकाला है। कर्नाटक की मारूफ शायरा शाइस्ता यूसुफ टिमकुर यूनिवर्सिटी ने एजाजी डॉक्टरेट तफवीज की है। शाइस्ता यूसुफ को ये एजाज उर्दू अदब के फरोग के लिए नुमाया खिदमात का एतराफ करते हुए दिया गया है। रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने टिमकुर यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में शाइस्ता यूसुफ को इस एजाजी डॉक्टरेट से सरफराज किया। वाज़ेह है कि शाइस्ता यूसुफ खवातीन की अदबी और सकाफती तंजीम महफिल निसा की सदर हैं। उर्दू अदब के लिए एजाजी डीलिट यानी डॉक्टरेट इन लिटरेचर दिए जाने पर शाइस्ता यूसुफ ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। मेरी मादरी जबान थी, लोग समझते हैं कि उर्दू में पढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन मैं कहती हूँ हर मादरी जबान अपने में एक ताकत रखती है, अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए या उससे लगाव हो, उससे मोहब्बत हो। मैं समझती हूँ आज जो मैंने मुकाम पाया है वो मेरे माँ बाप की तरबियत का असर है, मेरे टीचर्स की तरबियत का असर है, और फिर मेरे दोस्तों की मोहब्बतें हैं, और उसके अलावा मेरी जो मेहनत है वो मेहनत मैंने दिल से अपनी जबान के लिए की। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना